Hello, students. Welcome back. Today, we are going to start part 6 of chapter number 8, Computer System Organization. This is the last part of this chapter. After this part, this chapter will be complete. The first topic is program execution, that is, how the program will give us the desired output. The steps are loading of program, compiling a program, linking, and execution. Whenever we start a program, first of all, it is loaded from the memory. Then, it is converted from high level language to machine language by compilation. Third, it is linked with the associated files. And then, the execution of the program takes place, that is, it gives us the desired output. So, these are the 4 steps in the execution of a program. Now, as you all know that a computer understands the instructions in machine code, that is in the form of 0 and 1, that is at the binary language. The program which we write, that is when we write the codes of C and C++, these are the programming languages. They are written in high level languages, that is it is an English like language which we understand. So that programs which are written in high level languages are known as source programs, and the programs which get converted into the machine language. The source program, when get converted into the machine language, they are known as the object code. Why they are converted? Because the computer does not understand the high level languages directly. So, the process of this converting the source program into the object code, that is the code in which a computer can understand a language. This conversion is done by a particular software which is known as language processor or language translator. Basically, we have 3 types of language processors: assembler, which converts the assembly language into the machine language. Assembly language consists of the commands like add for addition, sub for subtraction. Compiler translates the complete source program as a whole in one go, like our C and C++ compiler. They check the whole program at once and shows the error number wise. And the interpreter, it also converts the high level language into machine language, but it does line by line. If there is any error in any of the lines, first the user needs to correct that error, and then only it moves to the next line. So we have the 3 types of language processors, that is the assembler, compiler, and interpreter. Since we are learning Python, and we have learned in the features of Python that it is an interpreted language. So when we run a program, you must have seen that as soon as any error comes, till the time we don't correct the error, the program cannot run again. So this is the working of the interpreter. Now next is the difference between a compiler and an interpreter. So the main difference between the compiler and interpreter is that first is a similarity, that is they both convert the high level language into machine language, and the difference is that the compiler converts in one go only the whole program, whereas the interpreter converts the program into the machine language line by line. Here it is saying debugs the program in one go. Bug is the error, and debug means to rectify the error, यानी कि उस error को ठीक करना. It does in one go, whereas interpreter does it line by line. Okay. Next is when it shows you the errors, compiler, it shows you all the errors in one go and shows you the numbers of line number of the errors also. But in case of interpreter, it shows you the errors and it shows you one particular error when being shown. First you need to correct that error, then only it will move to the next line. Till that error is not corrected, it will not go to the next line and it will not start the further execution of the program. The next point in compiler and interpreter differences: compiler program occupies less memory as it is compiled in one go. This we already know. And since interpreter interprets the program, so it takes much time than this one, and so that is why it takes more memory also, because the program remains in the memory till all the errors are
रिमूव्ड। जब तक आपके प्रोग्राम के सारे एरर्स रिमूव नहीं हो जाते तब तक आपका प्रोग्राम मेमोरी में ही रहेगा. दैट इज़ वाई इट टेक्स मोर मेमोरी स्पेस. Compiler takes the less execution time, it is obvious because it does in one go, whereas interpreter takes more execution time as compared to the compiler because it executes the statements line by line. So these are the four major differences between the compiler and the interpreter. Next we have is linker. We have learned about the steps in the execution of program. सबसे पहले program is being loaded. Second, the program is compiled with the help of language processor, and the third step is linking, and this is the final step in the program execution. Linking में basically क्या होता है कि आपका program जब compile हो जाता है, that is when the program is converted from the source code to the object code, मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. तो उस प्रोग्राम के साथ जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं, दे आर अटैच टू इट टू कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो पूरी अच्छी तरह से रन हो सके. इट नीड्स टू बी चेंज इनटू दैट टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट, and this entire process is known as linking, and the software which we are using to carry out this task, that is known as a linker. So linking क्या हुआ, the process जो काम हो रहा है सारा linking का, जिसमें आपकी फाइल्स वगैरह सब अटैच हो रही हैं, associated files and libraries, that is linking, and the software which is carrying out this task of linking, that is termed as a linker. Now the process of linking comprises resolving the references to external symbols. आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज़ किए गए उन्हें एड्रेसेस प्रोवाइड करना, डेटा रिफ्लेक्ट करना न्यू एड्रेसेस की तरफ. तो ये सारा काम आपका लिंकिंग में ही होता है. अबाउट दिस यू विल कम टू नो मोर अबाउट व्हेन यू विल लर्न द लेटर चैप्टर्स. नाउ वी हैव लाइब्रेरीज. Like in a school, there is a library, and a library is a place where there is a collection of books being stored. Similarly, every programming language has a library which consists of the various inbuilt functions or the user-defined functions. And अगर हम एक library की Python में बात करें तो it is a collection of modules. अब modules क्या होते हैं? जो आपकी Python की files होती हैं which have the .py extension, वो आपकी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शंस और द मेथड्स, जिसकी हेल्प से यू कैन परफॉर्म लॉट ऑफ एक्शंस विदाउट द नीड ऑफ राइटिंग द कोड. अभी दिस इज़ अ लिटल यू कैन से अ डिफरेंट टॉपिक फॉर यू. About this you will come to know about it when you will learn the later chapters. Don't worry about these topics. This will be explained later on again when we will learn about this chapter, जिसमें आप इंपोर्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे वी नीड मैथ लाइब्रेरी नीड्स टू बी इम्पोर्टेड टू फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर. तो वी लर्न अबाउट दिस इन द लेटर चैप्टर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्लाउड कंप्यूटिंग. So basically what is cloud computing is, cloud computing is a method of delivering the technology to the consumer by using the internet servers for processing and data storage while the client system uses the data. दैट क्लाइंट सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन, या फिर आपका टीवी हो गया. तो इस केस में आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी एक MS वर्ड की फ़ाइल है, अगर आप उस अपने सिस्टम पे सेव करते हो तो वो कहाँ स्टोर होती है, आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है. तो उसे आप किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके कंप्यूटर में ही है. लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन सम अदर कंप्यूटर, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो उसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से कर सकते हो, जिसमें आपकी जो फाइल्स हैं दैट गेट स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट सर्वर्स. जब तक क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, टिल दैट टाइम हमारी फाइल्स हमारे ही सिस्टम में रहती थी एंड वी कुड एक्सेस इन दैट सिस्टम ओनली. लेकिन एज सून एज दिस कॉन्सेप्ट केम, तो आप अपनी फाइल्स को कहाँ सेव कर सकते हैं, इंटरनेट सर्वर्स पे आपकी फाइल्स सेव हो जाती हैं. एंड सपोज़ आप अपने घर पे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, आपने अपनी फ़ाइल को वहाँ से एक्सेस किया. अब आप अपने ऑफिस में गए, यू नीड टू एक्सेस द सेम फाइल. तो आप क्या करेंगे, जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के आईडीज़ और पासवर्ड्स हैं उस अकाउंट पे जाके आप लॉगिन करेंगे एंड देन यू कैन टेक आउट दैट फाइल एंड एक्सेस इट. अब इसमें आपके एप्लीकेशन पार्ट आता है, प्लेटफॉर्म आता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बेसिकली, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. अब पब्लिक क्लाउड नेम से आपको पता चल रहा है विच इज़ पब्लिक इन नेचर, विच एनीबडी कैन एक्सेस. जैसे पब्लिक स्कूल्स आर देयर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर देयर, कोई भी वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, जा सकता है. इसी तरह से देर आर पब्लिक क्लाउड्स जहाँ पे द रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड हार्डवेयर डिवाइसेस आर शेयर्ड बाय ऑल द क्लाइंट्स. ऐसी क्लाउड सर्विस जिसके
हार्डवेयर डिवाइसेस और मेमोरी को आप कोई भी शेयर कर सकते हैं या कोई भी पर्सन उसे शेयर कर सकता है, दैट आर नोन एज द पब्लिक क्लाउड। एंड जो उसके क्लाइंट्स होते हैं दे आर नोन एज द क्लाउड टेनेंट्स। टेनेंट्स जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर पे आपने अपने घर का कुछ पोर्शन अगर रेंट पे दिया है, तो द पर्सन हु आर रिसाइडिंग ऑन द रेंट दे आर नोन एज द टेनेंट्स। सिमिलरली द पर्सन्स हु आर यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दे आर द टेनेंट्स। देन वी हैव इज it shares the computing services among the different customers and the data is hidden from one customer to another। जैसे गूगल ड्राइव है और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। आपके अकाउंट की अपनी गूगल ड्राइव हो सकती है, मेरे अकाउंट की अपनी है। आप भी गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, आई एम ऑल्सो यूजिंग द गूगल ड्राइव। लेकिन आपका डेटा मैं एक्सेस नहीं कर सकती और मेरा डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो दैट इज़ बेसिकली पब्लिक क्लाउड। मतलब सॉफ्टवेयर एक ही है लेकिन सबका अपना अपना है और उस पर वर्क हो रहा है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर पर्सन की अपनी है। लेकिन ऐसा है कि गूगल ड्राइव कोई भी डाउनलोड कर सकता है और एनी टाइम इट कैन बी यूज्ड। इसके बाद आता है आपका प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड आपकी वो क्लाउड सर्विस है जो आपकी अपनी होती है। प्राइवेट नेम से आपको पता चल रहा है, इट इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। All the resources such as memory and services are dedicated to that organization। एंड मान लीजिए यू हैव अ कंपनी एंड आपकी एक अपनी कंपनी है और उसके अंदर कुछ डेटा मैनेजमेंट करना है, डेटा को स्टोर भी करना है, काफ़ी ईयर्स का डेटा है, तो उसके लिए आप एक क्लाउड सर्विस ले लेते हैं। प्राइवेट क्लाउड अपना खुद का खरीद लेते हैं जिसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ आपके पास है या आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास है, बाहर का कोई पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज़ नोन एज अ प्राइवेट क्लाउड। अब जैसे गूगल ड्राइव था, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, आपकी नहीं लेकिन वैसे नॉर्मली कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक अपना प्राइवेट क्लाउड ले लिया तो वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ the next term is the types of cloud computing services. So here we have the infrastructure as a service, IaaS, PaaS, platform as a service। तो इस केस में आपका क्या होता है, ये जो आपका IaaS है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रोवाइडेड एज अ सर्विस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि कंपनी ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, स्टोरेज दे दिया, नेटवर्क दे दिया, बाकी जो भी आप उस पर काम करना चाहते हैं वो आपका है। द एग्जाम्पल इज़ डिजिटल ओशन। दिस यू कैन सर्च आउट ऑन द इंटरनेट, यू विल कम टू नो मोर अबाउट दिस। नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है कि जिसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ कस्टमाइज एप्लीकेशन एंड कैन बी मैनेज बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। जैसे कि अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज हैं या विंडोज़ एज्योर है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया। अमेज़ॉन पे आप थिंग्स को बाय करते हैं एंड इट गिव्स यू द सर्विसेज टू सेल ऑल्सो। तो अमेज़ॉन क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया और काम आपका हो रहा है, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट इज़ सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है एंड ओनली यू हैव टू यूज़ इट। यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि हाउ दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड हाउ इट गेट बिल्ड। इनर मैकेनिज़्म की आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि गूगल ऐप इज़ देयर, ड्रॉप बॉक्स इज़ देयर। गूगल की बहुत सारी ऐप्स होती हैं, लाइक गूगल डॉक्स है, बहुत सारी और होती हैं, गूगल स्लाइड्स आर देयर। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें यूज़ करते हैं। आपको डाउनलोड और इंस्टॉल भी नहीं करनी होती, डायरेक्टली आप वेब ब्राउज़र में जाके एंड उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ आपका आता है डैश, दैट इज़ डेस्कटॉप एज अ सर्विस। जहाँ पे आपके डेस्कटॉप में जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी एंड दे हैंडल ऑल द थिंग्स। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सिट्रिक्स। इट इज़ अ कंपनी विच प्रोवाइड्स दिस सोल्यूशंस, जिसके अंदर आपकी वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम वर्चुअल कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब डेटा जो स्टोर हो रहा है वो सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है, फिजिकली कोई काम नहीं हो पा रहा है। ओके, सो इसमें हमने 4 पढ़े, तो इसको आप कैसे देख सकते हो। जैसे इसमें आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आपने एक घर बनवाना है, तो उस केस में आपने सारा काम किसी एक थर्ड पार्टी को दे दिया कि मटेरियल भी वो भी लाएगा और बाकी काम भी वही करेगा। तो वो क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपका काम सिर्फ पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पास है उसके अंदर क्या कह सकते हो, आपकी मटेरियल आप ला रहे हो, बाकी काम द अदर पर्सन इज़ डूइंग। तो आपने उसको प्लेटफॉर्म दे दिया, बाकी काम वो कर रहा है, दैट इज़ पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या हो रहा है कि मटेरियल भी आप ला रहे हो, काम भी आप कर रहे हो, लेकिन जो फिनिशिंग है दैट द अदर पर्सन इज़ डूइंग।
तो वो आपका क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। और डेस्कटॉप का आपने समझ ही लिया, वर्चुअल डेस्कटॉप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट वी हैव इज पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल का मतलब साथ के साथ, कंप्यूटिंग मतलब टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? बेसिकली it is the simultaneous use of the multiple computer resources to solve a computational problem. कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, उनका साथ के साथ यूज़ करना टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज़ नोन एज पैरेलल कंप्यूटिंग। तो इस केस में 4 steps are there. First of all, a problem is broken down into discrete parts. Then parts are broken down into instructions. Then उसके बाद जो आपकी instructions होती हैं उनको one by one प्रोसेस किया जाता है, and this way the program gets executed. There is a control coordination mechanism between the instructions, and last में आपकी जो instructions हैं वो execute हो जाती हैं. So these are the 4 steps which can be understood how the parallel computing is being done. And now let us understand कि what is the need of parallel computing. Means आप ये कह सकते हो why do we use it or what are its advantages. सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम के पार्ट्स में डिवाइड करके अगर उसको सॉल्व किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वी आर सेविंग आवर टाइम, इट इज़ सेविंग आवर टाइम एंड मनी. ठीक है. सेकेंड थिंग, इट कैन सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. पैरेलल कंप्यूटिंग की हेल्प से आप मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ द पैरेलल हार्डवेयर. ओके, जो भी आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है उसका अच्छे से यूज़ हो जाता है, ऑल कम इन यूज़. एंड यूज़ ऑफ नो लोकल रिसोर्सेज. मान लीजिए आपको उस काम करने के लिए कुछ लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं भी हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की हेल्प से जो दूसरे रिसोर्सेज हैं ऑन सम अदर कंप्यूटर, दैट कैन बी used. So this is the concept of parallel computing. Here you can see the picture. This is a problem. कितने parts में divide किया इसको? 4 parts में. 4 square boxes you can see. अब हर एक part को हमने क्या किया? instructions में divide कर दिया. 5 instructions में divide कर दिया. अब एक एक करके instruction एक एक processor के पास जा रही हैं and they are getting executed. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि एक ही प्रॉब्लम जो है, ऐसा नहीं हो रहा कि पहले एक इंस्ट्रक्शन जा रही हैं लेकिन एक पार्ट की एक इंस्ट्रक्शन जा रही है, लेकिन बाकी के केस में मतलब बाकी जितने भी पार्ट्स हैं साथ साथ काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले एक पार्ट सॉल्व होगा देन दूसरा होगा. ऑल आर वर्किंग साइमल्टेनियसली. नाउ इज द असाइनमेंट पार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड. दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज द सोर्स कोड एंड द प्रोग्राम्स रिटन इन converted into machine code are the object code. Next question is what is an assembler? Write the difference between compiler and the interpreter. This we have discussed in the video very clearly. Third is explain the term linking and linker. This also has been discussed. What is cloud computing? Explain the different types of clouds. Definition of cloud computing you have to write down, and public cloud and private cloud with their examples. Explain various cloud computing services. ये हमने अभी पढ़ा. IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, ये सब आपको लिखना है. What is parallel computing and advantages of using the parallel processor? That also you have to write down. अभी हमने ये डिस्कस किया. Okay, all the questions we have discussed, they can be done very easily. Do them in your notebooks.